بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں بلی کے ساتھ یہ کام کبھی نہ کرنا ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ خبردار، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے اور جرم سے باز رہنا چاہیے۔ اسلام کے جامع مذہب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ اعرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جسم فروش عورت نے سخت گرمی کے دن ایک کتے کو دیکھا جو ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا اور پیاس کی شدت سے اپنی زبان نکالے ہوئے تھا۔ اس عورت نے اپنے چمڑے کی خف سے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ آدمی جو کھیتی کرتا ہے یا باغ لگاتا ہے اور اس کی کھیتی اور درخت سے کوئی جانور یا پرندہ کچھ کھا لیتا ہے یا چگ لیتا ہے تو اس میں بھی مالک کو ثواب ملتا ہے، خواہ صاحب کھیت اور درخت والے کو اس کا علم نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس درخت یا کھیتی میں سے کوئی چڑیا یا آدمی یا جانور کھاتا ہے تو اس لگانے والے یا بونے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جانور کو قتل کر کے یوں ہی پھینک دینا، اس سے فائدہ حاصل نہ کرنا، اس کو کام میں نہ لانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذبح کو جائز قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے چڑیا یا کسی بھی جانور کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو ذبح کر کے کھاؤ نا، یہ ہے کہ اس کا سر کاٹ کر اسے پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بلا فائدہ قتل کیا، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گی کہ اے اللہ، اس نے مجھے بیکار قتل کیا اور مجھے فائدے کے لیے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے اتفا جائز قرار دیا ہے۔ ایسے جانوروں کو ذبح کرنا شریعت کے منشا کے عین مطابق ہے، لیکن اس میں بے راہ روی اور ظلم اور زیادتی ناروا اور غیر درست ہے۔ ذبح کے سلسلے میں چند فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے چند آداب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اچھی طرح ذبح کرے۔ نمبر 2، ذبح سے پہلے چھری تیز کر لے۔ نمبر 3، ذبح کے جانور کو ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد خال اتارے۔ نمبر 4، قربانی کے لیے جانور کو گھسیٹ کر مت لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ ہوا لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس سے فرمایا، اس کو موت کے لیے لے جاؤ اچھے طریقے سے۔ نمبر 5، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 6، ذبح کرنے والا جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ نمبر 7، ذبح کے لیے جانور کو بے دردی سے نہ گرائے۔ دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ جن کے حق میں بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ ایک شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ جلال میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان
अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात से नवाजा। सबसे बड़ा मौजज़ा आप जानवरों की ज़बान समझते थे। अल्लाह ताला ने जानवरों को आपके ताबे फरमाया हुआ था। जानवरों को, हवा को शयातिन अल्लाह ताला ने आपके ताबे किया हुआ था। और कमाल की बात यह थी कि आप जानवरों की ज़बान भी बोल लेते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि किसी शख्स ने कुत्ते को जहर देकर मार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुत्ते को मारने वाले शख्स के घर पहुंचे। जब उसके घर पहुंचे, जब उसने देखा कि शहंशाह वक्त और नबी मेरे घर में आया है, तो वह खुशी से निहाल हो गया। दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज गुजार हुआ, या हजरत, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल आपकी खिदमत में हाजिर होता। आने की वजह क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्दी करो अभी, और इसी वक्त गांव वालों को इकट्ठा करो। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। अगर तुम मेरी नसीहतों पर अमल करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अगर तुम मेरी नसीहतों पर अमल नहीं करोगे तो याद रखना, तुम्हारी नस्लें उजड़ जाएंगी। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सारा का सारा गांव एक जगह पर इकट्ठा हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत्ताब फरमाया, आपने फरमाया, लोगों, दुनिया में 5 जानवर और परिंदे ऐसे रहते हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल होती है। उनकी बद्दुआ से बचना, इन जानवरों की खिदमत करना, इन परिंदों को पानी पिलाना, इन्हें दाना डालना, इनसे दुआ लेने की कोशिश करना। मैंने बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार दरवेशों को देखा है जिनके दिन रोजों में गुजरते हैं, जिनकी सारी सारी रात इबादत में गुजरती है, लेकिन इन परिंदों और इन जानवरों से ली गई बद्दुआ ने उनकी तमाम इबादत को जाया कर दिया। लोगों ने पूछा, हजरत, वो कौन से परिंदे और जानवर हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल हो जाती है? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1 कबूतर। कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला के नबियों से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता है। हर वक्त उसकी जबान पर अल्लाह ताला का विर्द रहता है, जिक्र इलाही जारी रहता है। कबूतर जब नींद से उठता है तो उठते ही अल्लाहू का जिक्र करता है, फिर अल्लाहू का जिक्र पूरा दिन यह करता ही रहता है। कबूतर जब परवाज करता है तो परवाज करते वक्त भी यह अल्लाहू अल्लाहू पढ़ता ही जाता है। इधर से अल्लाह का जिक्र करता जाता है, धर से परवाज बढ़ती जाती है। परवाज करता करता बहुत ज्यादा बुलंदी पर पहुंच जाता है। अल्लाह का जिक्र उसे बहुत बुलंदी पर पहुंचा देता है। फरमाया नंबर 2, मैंने बहुत से मुत्तकी की परहेजगारों को देखा, दरवेश को देखा, बहुत बड़े इबादत गुजारों को देखा। दुआ उनकी भी इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ कबूल होती है। बिल्ली जब किसी के हक में दुआ करती है, फौरन उसकी दुआ कबूल होती है, और बिल्ली जिसके हक में बद्दुआ करती है वो भी कबूल हो जाती है। नाजरीन, बिल्ली पर जुर्म ना किया करो, बिल्ली को मारा मत करो। अगर हो सके बिल्ली को दूध पिलाया करो, उससे दुआ लेने की कोशिश किया करो। अगर उससे तुम बद्दुआ लोगे तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बिल्ली पर तशद्दुद करोगे, तुम्हारा घर परेशानियों की दलदल में फंस जाएगा। तुम्हारे घर को परेशानियां आ घेरेंगी। पंजाब का एक शहर है, उसके घर में बिल्ली का आना जाना लगा रहता था। बिल्ली रोजाना आती, कभी दूध पी के जाती, कभी रोटी खा के जाती। उस बिल्ली ने घर वालों को तंग किया हुआ था। एक दिन घर के मालिक को गुस्सा आया, वो बिल्ली पर बरस पड़ा। बिल्ली को उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। गुस्से में आग बगोला होकर बिल्ली को मारा पीटा, इस कदर पीटा कि वो वहीं बेचारी तड़पती तड़पती मर गई। तड़पती इस तशद्दुद में बिल्ली ने अल्लाह से कोई बद्दुआ की होगी। सकी बद्दुआ फौरन कबूल हुई। उस घर में एक 8 साल का बच्चा था। ऐन उसी वक्त उस बच्चे की अक्ली तवाजुन जाती रही। बच्चा फौरन पागल हो गया और अभी भी वह पागल जिंदा है। उन्होंने बहुत इलाज करवाए, दुनिया छान मारी, इसका कोई इलाज नहीं मिल सका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जब जहन्नुम में झांक के देखा, एक औरत दर्दनाक अजाब में मुब्तला थी। मैंने पूछा,
इस औरत को अजाब क्यों दिया जा रहा है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जिसने बिल्ली को अपने घर में इस हाल में बांध रखा था कि ना तो यह बिल्ली को दूध पिलाती थी, ना तो यह बिल्ली को पानी पिलाती थी, और बिल्ली वहीं प्यासी तड़पती तड़पती मर गई। बिल्ली का प्यास की वजह से तड़पना इसकी तबाही का जरिया बन गया। बस बिल्ली की बद्दुआ ने इसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। फरमाया नंबर 3, चिड़िया। चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसे अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। चिड़िया को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चिड़िया के अंदर 3 खुसूसियात ऐसी हैं जो बाकी किसी परिंदे के अंदर नहीं। लोगों ने पूछा, हजरत वो 3 खुसूसियात कौन कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1, चिड़िया मासूम सी है, चालाक नहीं है। चिड़िया किसी से लड़ती नहीं, चिड़िया किसी से झगड़ी नहीं। फरमाया चिड़िया का जो ईमान होता है वह एक इबादत गुजार शख्स से भी बढ़कर कामिल ईमान होता है। चिड़िया कामिल ईमान रखने वाली होती है। कल के लिए आज के दिन में कोई दाना पानी इकट्ठा जमा करके नहीं रखती कि यह कल खाऊंगी, क्योंकि चिड़िया का ईमान है, यकीन है, अगर अल्लाह ने मुझे कल तक जिंदा रखा तो अल्लाह ताला मुझे रिज़्क जरूर देगा। फरमाया तीसरी खुसूसियत, चिड़िया हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मसरूफ रहती है, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, लोग उसे मारते हैं इस वजह से कि उसे मारने से कोई गुनाह नहीं होता। तारीख के बहुत से वाक़यात इस तरह के पड़े हैं जिन्होंने कुत्तों पर जुल्म किया। कुत्तों को मारा, कुत्तों पर जुल्म करना उनकी तबाही का जरिया बन गया। कुत्तों पर किए जुल्म ने उनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया, और जिन्होंने कुत्तों से दुआएं ली, जिन्होंने कुत्तों पर रहम किया, वो गुनाहगारों की बख्शीश का जरिया बन गया। आपने सुना नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गुनाहगार औरत थी, बदकार थी, नाचने वाली तवायफ थी, तवायफ बख्शी गई, मरने के बाद सीधा जन्नत में चली गई। आखिर उसने कौन सा ऐसा अमल किया था जो उसकी बख्शीश का जरिया बना? हालांकि सारी जिंदगी उसने नाचते गुजारे, उसने एक ऐसा अमल किया जो उसकी बख्शीश का जरिया बन गया। उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। अगर इंसान किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाए, अल्लाह ताला उस पर कितना राजी होगा। फरमाया नंबर 5, चींटी। चींटी एक ऐसा जानवर है जो आम सा जानवर है। फरमाया चींटी को पांव तले ना रोदा करो। अगर तुम्हें इन चिटियों की अहमियत का पता चल जाए तो तुम मरते दम तक कभी भी चोटियों को पैरों तले नहीं रौंदोगे। अगर तुम इन्हें रौंदोगे, अगर ये गलती करोगे तो याद रखना, रिस्क से हाथ धो बैठोगे। अगर तुम्हारे हाथ से खाने पीने की कोई चीज नीचे गिर जाए तो उसे चिटियों के लिए नीचे रहने दिया करो। चिटिया खाएंगे, तुम्हारे हक में दुआएं करेंगी, उनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन्हीं की दुआओं के सदके तुम्हें रिस्क वसी अता करेगा। फरमाया सब कुछ करना, इन 5 जानवरों और परिंदों से बद्दुआएं ना लेना कोशिश करना। दुआएं लेने की नाजरीन सोचो, अगर कोई परिंदों की खिदमत करे बख्शा जाए, अगर कोई जानवरों की खिदमत करे तो बख्शा जाएगा, तो अगर कोई इंसान की खिदमत करे तो अल्लाह ताला उसे कितना कुछ अता नहीं करेगा, बहुत कुछ अता करेगा। अल्लाह ताला हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। आमीन। नाजरीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।